नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। What is happening in Tamil Nadu with Hindu temples is very unfortunate. The Tamil Nadu Chief Minister once said that I will destroy the Sanatana Dharma. So following the same promise, under his regime, the temple idols are being broken, destroyed. The recent incident is idols at Siruvachur Amman temple found broken once again. HRNCE remains mute spectator. With not even a month having passed after the attack on the Siruvachur Amman temple located in Perambalur district, idols at the temple have once again been found broken, with the vandals inflict far more serious damage. Madhur Kalliman temple is a famous temple located at Siruvachur in Perambalur district. The goddess is said to be the family deity of Kanchi Shankaracharya. The Periyasamy Cheliamman temple and the Sengamallur temple are associated temples of the Madura Kalliamman temple and fall under the control of Hindu religious and charitable endowment department. Earlier of October 7, many of the idols at the Periyasamy Cheliamman temple and the Sengamallur temple, including that of Amman, Madhurasviram, the Sapta, Kanis, etc., were found displaced and broken by miscarriages. This time the idols of horses, goddess Amman and other gods were found broken. Many of the idols had their head cut off, which indicates that the act has been done deliberately to hurt the Hindus. मंदिरों में आस्था किसी से छिपी नहीं। The Hindu Munnani immediately plunged into action and staged at a road roko on Wednesday, October 27 against the administration's apathy. Many Hindu activists have been questioning the Hindu religious and charitable endowments departments and its minister P. Shekhar Babu for their silence and inaction on the matter. Earlier, a crowdfunding campaign was launched to repair the damages at the temple. Netizens have been lashing out, saying that incidents of attack on temple have been on the rise ever since the DMK came to power. आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ
दिवाली के दिए जला रहे This is होंगे, really अपने very, घरों को very रोशन कर रहे bad. होंगे। और इस वक्त मैं केदारनाथ This धाम is से really very, आपको very bad. तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से दीपावली God केदारनाथ will धाम में मनाई जा not रही है। leave these केदारनाथ people धाम में दीपावली unpunished. मनाने का They will एक अलग get महत्व है। और punishment कहते हैं definitely. कि देव के साथ दीपावली मनाने Okay, का thank you for अवसर watching इस this पृथ्वी पर video. जिन चुने हुए लोगों Please को होता है, like, उनमें से comment हमारी and टीम share भी the एक है। video हमें and भी वो परम subscribe सौभाग्य the प्राप्त हुआ channel. है कि हम यहाँ Thanks a मौजूद हैं lot. और देव के साथ आज Namaskar, रात namaskar दीपावली my यहाँ dear हम friends. सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस Please वक्त की तस्वीरें subscribe भी the आपको दिखाना channel. चाहेंगे Thanks a lot. स्पेशल एडिशन में कि किस तरीके से दीपावली यहाँ मनाई जा रही है। केदारनाथ धाम से हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम में महादेव में जो उनकी आस्था है वो किस तरीके से उनके द्वारा करवाए गए पुनर्निर्माण के कार्यों में दिखाई देती है और दिखाई दे रही है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। काशी विश्वनाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से पशुपतिनाथ तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति और शिव मंदिरों में आस्था किसी से छिपी नहीं। शिव के प्रति समर्पण और तप की शक्ति से मिलने वाली ऊर्जा अथाह होती है। और कर्मयोगी जब शिव का तप करते हैं तो इसका परिणाम भी उनके कार्यों में नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव पर आस्था काशी से लेकर केदारनाथ तक शिव धामों के कायाकल्प में भी नजर आती है। आज से 8 साल पहले एक त्रासदी आई थी जिसने केदारनाथ धाम की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी थी। दुर्गम पहाड़, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, मुश्किल मौसम। लोगों को लगा था कि उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ धाम में पुरानी रौनक नहीं लौट पाएगी। लेकिन शिव भक्ति से मिलने वाली संकल्प शक्ति ने आज स्वप्न को सत्य करके दिखा दिया है। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करूं। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम आज पूरी तरह से बदल गया है और दीपावली पर केदारनाथ धाम की ये भव्य तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री का संकल्प धीरे धीरे सिद्धि तक पहुंच रहा है। 4 नवंबर यानी आज दीपावली और दीपावली के दूसरे दिन यानी 5 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं पवित्र केदारनाथ धाम। तमाम योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद यहां से देश को संबोधित भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि है। मंदिर मेरे ठीक सामने है। पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और उसके बाद शंकराचार्य जी जब यहाँ तप करने पहुंचे थे उसके बाद से ही इस भूमि को तप और तर्क की भूमि कहा जाता है और इसीलिए इस जगह का महत्व बहुत ज्यादा है। लोकार्पण करने की योजनाओं में तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने के बाद जहां जाएंगे वो होगा ये श्री आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल,
जहां हम यहां इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई तमाम परियोजनाओं के महत्व के बारे में एक एक करके बताएंगे। साथ में ये भी समझाएंगे किस तरह केदारनाथ को आस्था के साथ साथ पर्यटन के केंद्र के तौर पर भी विकसित करने की तैयारी की गई है। लेकिन पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यक्रम की और केदारनाथ पर उनकी आस्था की। दीपावली के अगले दिन यानी शुक्रवार को यहां पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम पर अपार श्रद्धा और आस्था है। प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते रहे हैं। इस बार दीपावली के ठीक बाद जब प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में होंगे तो 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए उनकी देखरेख में जो काम शुरू किए गए उसके पहले चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा और अगले चरण के कार्यक्रमों का शिलान्यास भी। यहाँ यानी मंच पर ठीक ये सामने का हिस्सा, यहाँ से प्रधानमंत्री जो तमाम यहाँ की योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करके और शंकराचार्य जी की समाधि का लोकार्पण करके वो पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद वो यहाँ से देश के लोगों को संबोधित करेंगे और हमारी उस प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन से लेके और यहाँ जब वो प्रस्थान करेंगे हम एक एक हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे केदारनाथ धाम से। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे तब किन किन विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि का लोकार्पण करेंगे। ये समाधि 2013 की त्रासदी में नष्ट हो गई थी। पुनर्निर्माण के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का स्वरूप और भव्य होगा। प्रधानमंत्री खुद इस परियोजना की समीक्षा करते रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सरस्वती रिटेनिंग वॉल आस्था पथ और घाट का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के हाथों ही यहाँ पर मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल आस्था पथ का भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थ पुरोहित घरों और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल का उद्घाटन भी करेंगे। 2013 में जो यहाँ पर भीषण आपदा आई थी, उस आपदा में काफी यहाँ पर सारी चीजें क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो स्थान था वो भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। वो भी बाबा केदार की तरफ आकर समाहित हो गया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसी समय यहाँ पर जो सरकार थी उस समय की उसको कहा था कि हम केदारपुरी के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, पुनर्निर्माण करवाना चाहते हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बन गए 2014 के आम चुनाव में बाबा केदार की कृपा से, देश की जनता के आशीर्वाद से। तो उन्होंने यहाँ पर एक केदारपुरी को भव्य रूप देने के लिए, जो उनका एक स्वप्न था कि एक ये भव्य केदारपुरी बननी चाहिए, बाबा के वो अनन्य भक्त हैं, यहाँ पर दिव्य केदारपुरी का निर्माण होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर लगभग 400 करोड़ की जो योजनाएं हैं, जिसमें से 250 करोड़ की योजनाएं पूरी हो गई हैं। उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो मूर्ति है उसका भी अनावरण उस दिन होने वाला है। यहाँ पर सरस्वती घाट के जो काम हो गए हैं, आस्था पथ बन गया है, यहाँ पर पुरोहितों के हमारे आवास बन गए हैं, उन सभी का 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है दूसरे चरण का। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में करोड़ों की लागत से बनने वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटन सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल, 2 गेस्ट हाउस, पुलिस स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मंदाकिनी आस्था पथ कतार प्रबंधन और रेन शेल्टर के साथ साथ सरस्वती नागरिक सुविधा भवन भी शामिल है। जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री कल उद्घाटन करेंगे उनकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। देखिए, प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर सबसे पहले तो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद जितने यहाँ पर जो निर्माण के कार्य चल रहे हैं उन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो कार्य जिसमें
आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है जी। उस मूर्ति के साथ उस मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी निर्माण कार्य यहाँ पूरा हो चुके हैं उन सभी का लोकार्पण करने वाले हैं और जो नए काम यहाँ पर शुरू होने वाले हैं 150 करोड़ से भी ज्यादा के, उन सभी का शिलान्यास करने वाले हैं। 2013 में जब यहाँ पर कुदरत का कहर टूटा था तब सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से पूरा हुआ है। आगे हम आपको केदारनाथ धाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था के साथ साथ इससे पहले हुई प्रधानमंत्री की केदारनाथ यात्राओं और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के बाद आए बदलाव की भी पूरी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो आदि गुरु शंकराचार्य की उस भव्य मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने की तप की भूमि है, यहाँ उन्होंने तपस्या की है और इसलिए इस मूर्ति के निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री का वो सपना कि एक भव्य मूर्ति का यहाँ निर्माण हो और उसकी स्थापना की जाए, ताकि जो लोग केदारनाथ धाम में पहुंचे बाबा के दर्शन के लिए, महादेव के दर्शन के लिए, वो उस दर्शन के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की उस समाधि स्थल तक जरूर जाएं। इस वक्त मैं दोबारा आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ, क्योंकि दीपावली की रात जिस तरीके से यहाँ रोशन है, जिस तरीके से यहाँ जगमग है, वो एक अद्भुत दृश्य है जिसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हम साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ देश की चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की गई थी और आदि गुरु शंकराचार्य जिस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। केदारनाथ धाम पांडवकालीन है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार का काम आदि गुरु शंकराचार्य ने ही किया था। उसको जो ये मंदिर जिस रूप में आप देखते हैं उसको इस रूप तक पहुंचाने का काम आदि गुरु शंकराचार्य ने ही किया था और उसके बाद ही ये मंदिर इस स्वरूप में आपको दिखता है। साल 2013 में त्रासदी जब आई थी उस समय इस मंदिर के ठीक पीछे वो समाधि स्थल एक था जिसमें एक छोटी मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की रखी हुई थी, लेकिन त्रासदी में वो उस बहाव के साथ बह गई और अब जबकि प्रधानमंत्री ने दोबारा इस नई मूर्ति को, इस भव्य मूर्ति को यहाँ स्थापित करवाया है, तो कल वो दिन है जब आदि गुरु शंकराचार्य की उस मूर्ति का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचकर। अद्भुत शक्ति, अद्भुत स्थान, अद्भुत अनुभव। यहां भगवान शिव का वास है। 12 ज्योतिर्लिंगों में, 4 धामों में, पंच केदार में ये है केदारनाथ धाम। भगवान शिव की पावन स्थली। मान्यता है देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इसका जिक्र स्कंद पुराण के केदार खंड में भी हुआ है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु कण कण में भगवान शिव की उपस्थिति की अनुभूति करते हैं। कहा जाता है पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। केदारनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप के शिल्पकार आदि शंकराचार्य ही माने जाते हैं। जो ये मंदिर है ये 5,500 वर्ष पुराना है और द्वापर युग का बना हुआ है मंदिर है। और जब मंदिर यहाँ पे 5,500 वर्ष पहले बन चुका था तो उसके बाद यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी आई
और उन्होंने देखा यहाँ पे विशाल शिवालय खड़ा है। किसी को कोई मालूम नहीं था कि यहाँ पे शिवालय भी है। सबसे पहले जो महापुरुष आए थे वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ही यहाँ पे आए थे। बाद में उन्होंने यहाँ पे जब आके पूजा अर्चन किया और फिर यहाँ से चले गए, और यहाँ से जाने के बाद उन्हें पूरे विश्व का भ्रमण किया, पूरी दुनिया का भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर आदि शंकराचार्य की भव्य मूर्ति और समाधि स्थल इस बात की याद भी दिलाएगा। ये है आदि शंकराचार्य की वो अद्भुत और दिव्य मूर्ति जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होना है। इस जगह को लेके प्रधानमंत्री मोदी की आस्था, इस जगह को लेके प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास, इस बात को जो बातें आपने सुनी उसमें अब प्रधानमंत्री का केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पहुंचना और उसके बाद यहाँ पूजा पाठ करने के बाद थोड़ी देर ध्यान में वो यहाँ रहेंगे और उसके बाद तमाम दूसरी जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण करेंगे। एक दिव्य समाधि स्थल जो यहाँ बनाया गया है और शंकराचार्य जी की जो समाधि रूप में जो उनकी ये मूर्ति है ये अद्भुत है और ये अपने आप में, ऐसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको देख के ऐसा लगता है जैसे ये मूर्त रूप इसको दिया गया है, ऐसा लगता है स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ समाधि में बैठे हुए हैं और अभी भी बैठे हुए हैं, ऐसा इस मूर्ति को देख के प्रतीत होता है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार यहाँ पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना का महत्व क्या है और केदारनाथ धाम से आदि शंकराचार्य जी का कितना गहरा संबंध है। 32 साल की अवस्था में, जब उनको 8-10 साल की अवस्था में तो यहाँ पे आ गई थे वो मंदिर का जो देखने पूजा अर्चन करने। 32 वर्ष में वो यहाँ वापस केदार जी में आए और केदार जी में आए और उन्होंने इसी स्थान पे जहाँ पे ये शंकराचार्य जी का अभी ये स्थान है यहीं पे उन्होंने जीवित समाधि ली थी। अच्छा, यहीं पे समाधि ली थी उन्होंने? जी, यहीं पे इसीलिए इस जगह का महत्व है क्योंकि उन्होंने जीवित समाधि ली थी। समाधि ली थी शंकराचार्य जी ने और फिर तब से अब तक यहाँ पे लाखों की संख्या में भगत लोग आते हैं और सबका जो ये केदार जी है ये एक आस्था का केंद्र है। ब्लैक स्टोन की ये भव्य मूर्ति वायुसेना के शिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर 18 टुकड़ों में लाई गई थी जिसे मूर्तिकारों ने यहीं पर जोड़कर स्थापित किया। जो ये मूर्ति है आदि गुरु जगत गुरु जो शंकराचार्य जी की है ये मैंने जैसे पहले थी 2000 आपदा के पहले से जैसे मूर्ति थी वैसे ही ये प्रतीत होती है कि ये वही वक्त भी यहाँ मूर्ति थी। सेम ऐसी ही मूर्ति यहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य जी की ऐसी यहाँ पे मूर्ति थी 2013 से पहले। 2013 में जब बाढ़ आई तो जो समाधि थी वो तो जमीन के अंदर थी, एक बहुत बड़ा ऐसे ही हॉल बना रखा था वहाँ पे और वहाँ पे स्थापित मूर्ति कर रखी थी पहले के टाइम से, काफी पहले से। 2013 की बाढ़ से हुई तबाही के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने समाधि स्थल के पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया था जो अब पूरा हो रहा है। जिस आदि शंकराचार्य के लिए एक पूरी चिंतन धारा भारत में सैकड़ों वर्षों तक प्रेरणा देती रही, प्रभावित करती रही, उनकी एक समाधि स्थल वो भी इस हादसे में नष्ट हो गया। उसकी डिजाइन पर अभी काम चल रहा है। मैं श्रद्धावान आर्किटेक्चर्स के इस मूर्ति का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ उनकी ये तप भूमि, यहाँ उन्होंने तप किया है और यहाँ तप करने के बाद वो यहाँ से निकले पूरे विश्व, पूरे भारत के भ्रमण और भारत का भ्रमण करके उन्होंने सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार किया और हिंदू धर्म के प्रचार में वो हर जगह गए और फिर वापस अपनी तप भूमि पर लौटे थे और इसीलिए इस जगह को, इस स्थान को तप भूमि कहा जाता है। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल को दीपावली के मौके पर खूबसूरत दियों से भी सजाया गया है। आदि शंकराचार्य की भव्य समाधि और मूर्ति यहाँ पर आने वाले लोगों को केदारनाथ के इतिहास और आदि शंकराचार्य के सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयत्नों की भी जानकारी देगा। शंकराचार्य जो समाधि है तो ये हमारे धर्म के प्रतीक है। हिंदू धर्म के गुरु आदि गुरु शंकराचार्य नेशनल इंटीग्रेशन, देश की एकता और अखंडता के लिए इन्होंने 4 धामों की स्थापना की। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
4 मठों की स्थापना की और आज उनकी समाधि यहीं पे उनने समाधि ली और 16 वर्ष की अवस्था में यहीं से उनको भगवान शंकर का अवतार कहा गया था और उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में घूम करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करके 4 मठों की उनने स्थापना की। भारत एक रहे, अखंड रहे और विश्व गुरु बने। आज सब इन्हीं शंकराचार्य की बदौलत से सनातन धर्म जिंदा है। सबसे खास बात है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह पर भव्य मूर्ति और समाधि स्थल का सुझाव दिया था। अब आप सोच रहे होंगे, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदार खंड के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? यहाँ पर मौजूद पंडितों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में आने से पहले भी केदारनाथ आकर तपस्या करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जगह को लेकर आस्था और विश्वास बहुत है। इस जगह को लेकर उनका ध्यान भी रहता है और प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो इस घाटी में आते रहे हैं, यहाँ ध्यान करते रहे। 3 साल तक गोरुड़ चट्टी में रहे और मेरे बड़े भाई तो वो 2013 की आपदा में चले गए, तो प्रवीण कुमार उनका नाम था, जो आज उनके गौर हैं यहाँ पे जो पंडित है, मेरे भाई का नाम ही वही था। वो हमारे रूम पे बरोबर आते थे प्रधानमंत्री जी। जी हाँ, और यहीं रहते थे 3 साल तक जो है वो हमारे साथ खाते चीते थे। उनको उस चीज का कोई ज्ञान नहीं था उस चीज, लेकिन इस जगह को लेकर उनका बड़ा विश्वास रहा है शुरू से है। इन्होंने यहाँ 3 साल तक तपस्या की है मोदी जी ने, तो भाई उनको ज्ञान तो होगा कि आदि गुरु शंकराचार्य क्या है, उनको इतना ज्ञान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके आने की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। जी मीडिया की टीम ने इन तैयारियों का भी जायजा लिया। दीपावली के अगले दिन यानी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। तो इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस तस्वीर को। सामने है केदारनाथ मंदिर, उस पर और उसके आसपास दीपावली की तैयारियां पूरी की गई और उसके बाद अब ये पूरा हिस्सा जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी हिस्से में प्रधानमंत्री मौजूद होंगे जब वो लोगों को यहाँ से संबोधित करेंगे। इस पूरे हिस्से को तैयार किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गई हैं, चेयर्स लगा दिए गए हैं और सिक्योरिटी कॉर्डन जो है, जो फर्स्ट राउंड ऑफ सिक्योरिटी है, उसको भी अब एक ट्रायल के जरिए उस सिक्योरिटी के अलावा जो बाकी सिक्योरिटीज हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊंगा MI-17 जो इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है वो लगातार यहाँ से अब लैंडिंग और टेक ऑफ हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात जो लोग हैं, SPG यूनिट्स हैं और तमाम चीज़ों को यहाँ पर लाने का काम शुरू किया जा चुका है और इसीलिए तैयारियों को अब आखिरी रूप दिया जा रहा है। Mi-17 लगातार अलग अलग सॉर्टीज यहाँ हो रही हैं क्योंकि अब तैयारियां बिल्कुल आखिरी चरण में है, क्योंकि प्रधानमंत्री को यहाँ पहुँचना है। ये मंच जहाँ से प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, ये वो हिस्सा है। जी न्यूज को केदारनाथ धाम में वो मजदूर भी मिले जिन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में कई महीनों तक केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का कार्य किया। ये सूरज कुमार है, लगभग साल भर से केदारनाथ धाम में मौजूद है। सूरज कुमार ने बताया यहाँ पर किन परिस्थितियों में काम किया गया और प्रधानमंत्री के इस समाधि स्थल के लोकार्पण की खबर सुनने के बाद वो खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी मेहनत के बाद प्रधानमंत्री कल इसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। ये कैसी अनुभूति लग रही है कि आपकी मेहनत के बाद प्रधानमंत्री खुद आएंगे, आपके काम को देखेंगे और उसके बाद हो सकता है आपसे उनकी मुलाकात भी हो सकता है आप उनसे मिल भी पाए, ऐसा हो सकता है संभव। कैसा लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं उस चीज का जिसको आपने तैयार किया? अब भोलेनाथ जाने उनसे दर्शन होगा कि नहीं होंगे हमारे, इसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते। कार्य का लोकार्पण बाकी जो उन्होंने दिया था हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगन के साथ पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केदारनाथ की दिवाली भी बेहद खास है। ये उन साधुओं की मंडली है जो साल भर हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं और दिवाली पर केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। ये रंग बिरंगे साधु भी केदारनाथ की दिवाली की महिमा बता रहे हैं। लोग भी इतने भाग्यशाली हैं, जितने भगत आए वो भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर भव्य दर्शन पा रहे हैं, अपने घर छोड़ के और बाबा के यहाँ त्योहार मना रहे हैं। केदारनाथ धाम को आध्यात्म और तर्क की स्थली भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद केदारनाथ धाम की भव्यता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका खुद केदारनाथ धाम से गहरा रिश्ता है, वो इस आध्यात्मिक स्थान को
पूरी दुनिया में पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित देखना चाहते हैं। दीपावली के दूसरे दिन यानी कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और यहां केदारनाथ धाम में हुए पुनर्निर्माण के कार्यों का वो लोकार्पण करेंगे। और इसी के साथ कई ऐसे कार्यों का मोदी केदारनाथ धाम में लोकार्पण करेंगे जो पिछले कई दिनों से काम यहां लगातार चलता रहा है और अब वो कार्य पूरे हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से एक खास रिश्ता है। केदारनाथ धाम में 2013 की त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था और अब उस संकल्प की सिद्धि का दिन है जब वो यहाँ पहुंचेंगे, उन तमाम कार्यों का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद देश के लोगों को समर्पित करेंगे केदारनाथ धाम, जो पूरी तरीके से दोबारा तैयार किया गया, खड़ा किया गया और उसमें बहुत मेहनत लगी। Hershey Park Season Pass gives you unlimited visit. सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़, कुदरत की बेपनाह खूबसूरती, साधु संतों का जमावड़ा। ये 2021 का केदारनाथ धाम है जहां शिव का प्रिय डमरू बज रहा है। शिव की जय जयकार हो रही है, भक्तों का तांता लगा है, कोई शिव के ध्यान में डूबा है, कोई केदारनाथ बाबा के दर्शन के लाभ ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जी न्यूज 8 साल में केदारनाथ धाम में हुए बदलावों का जायजा लेने के लिए पहुंचा, तो यहां पर हुआ बदलाव नजर भी आया। आज केदारनाथ धाम में हर वो सुविधा मौजूद है जो इसे आस्था के केंद्र के साथ साथ लोगों का पसंदीदा पर्यटन स्थल भी बना रहा है। लेकिन आज से 8 साल पहले 16 जून 2013 को आई आसमानी आफत ने केदार घाटी में बर्बादी के वो निशान छोड़े जिन्हें मिटाना बहुत मुश्किल लग रहा था। उस दौर को देखने के बाद तो कुछ ऐसा था कि मैं तो ये सोचता था कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, कोई डरेगा ही, सब लोग, ऐसा हो गया। तो मैं नीचे यहाँ अपने स्थान पे था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे हाहाकार हुआ, बहुत ज़्यादा वो त्रासदी हुई, लेकिन 2 बार पानी आया। सुबह के टाइम पे आया, फिर उसके बाद एक हो रहा है और एक बार तो रात में आया। तो भयंकर काम हो गया। तो लोग मतलब कोई भी समझ नहीं पाया। यहाँ का कोई न्यूज़, कोई फोटो, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोगों को होश ही नहीं थी। 45 दिन बारिश और लगातार बराबर बाबा के पानी, बराबर कीचड़, दलदल, सब देखा आपने? वो माहौल था बिल्कुल आपसे। और फिर उसके बाद लोग भूखे प्यासे परेशान होने लगे। पानी पीने को नहीं, दलदल का पानी हो गया, सब बेकार हो गया। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। विपरीत परिस्थितियों के बीच केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से हुआ। लगातार मैं स्वयं मीटिंग करता रहा, हर चीज को देखता रहा, पुनर्निर्माण कैसा होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके विकास का चित्र खाका तैयार किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प आज केदार घाटी में फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ दोबारा से किस तरीके से केदारनाथ के आसपास जो स्ट्रक्चर थे, केदारनाथ धाम में जो नुकसान पहुंचा था, धीरे धीरे बहुत कार्य किए गए और अब हम कह सकते हैं इस जगह को वापस उन स्ट्रक्चर्स को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि व्हाट शुड बी डूज एंड डोंट्स। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम आसान नहीं था। यहाँ का मौसम काम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनता। 4 से 6 महीने तक बर्फबारी और इसके अलावा कभी भी होने वाली बारिश और मशीनों को इतनी ऊंचाई तक लाना आसान काम नहीं था। मौसम यहाँ पे तत्काल बदलता है। एक ही दिन में कई बार मौसम का परिवर्तन होता है और जिस ऊंचाई पे हम हैं 11,000 फीट के ऊपर, तो 3 से 4 महीने स्नो पैक्ट भी रहता है
सुबह और शाम को टेम्परेचर्स भी काफ़ी डाउन है। तो ऐसी परिस्थितियों में लगातार यहाँ पे पिछले 7-8 साल में काम चला है और आपने पूरा ट्रैक रूट भी जैसे देखा होगा और आप पूरा आगे भी देखेंगे तो जो एक मंदिर का चबूतरा है और जो मंदिर का जो मुख्य मार्ग है उसकी भव्यता देखते ही बनती है। आप यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर मशीनें पहुँचाने में भी हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई, क्योंकि यहाँ पर मशीनों को पहुँचाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। बहुत सारी मशीन्स को यहाँ पे एयर ड्रॉप किया गया। ऐसी मशीन्स थी क्योंकि रास्ता मोटरेबल नहीं था, इवन वॉकेबल भी नहीं था, क्योंकि वैली पूरी कट ऑफ हो चुकी थी और पूरा जो हमारा केदारनाथ है ये एक आइलैंड एरिया में है। तो हेली ड्रॉप यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स करी गई और जैसे आप पीछे मशीन्स जो देख रहे हैं ये मशीन्स यहाँ पे हेली ड्रॉप से करी गई हैं। कई बार छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स भी मशीन के जो होते हैं वो हम लेबर के थ्रू एक पालकी बना के उनको 70 लेबर्स एक टाइम पे मूव करती हैं। तो रीडेवलपमेंट वर्क की वो तस्वीरें हमें हमेशा याद आती हैं, हमें झकझोरती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और इसीलिए हम यहाँ इस ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पहुंचे हैं कि केदारनाथ धाम को दोबारा खड़ा करने के लिए, दोबारा चीजों को रीइंस्टेट करने के लिए किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं उसकी एक तस्वीर आपको जरूर दिखाएं। और इसी तस्वीर को दिखाने के लिए इस वक्त हम मंदिर के ठीक पिछले हिस्से में हैं। अब चीजों को रिकलेक्ट करने की जरूरत है। हम आपसे जो कहना चाहते हैं, अगर आपको याद हो तो मंदिर के ठीक पीछे आपको भीमशिला भी दिख रही है और जिस तरफ से ये पानी आया था, पूरा फ्लैश फ्लड आया था, अब हम कैमरा उधर घुमा रहे हैं। पूरा का पूरा वो हिस्सा जिधर से वो पानी आया था और जिसने मंदिर को नुकसान पहुंचाया, मैं अब उस हिस्से की तरफ आ गया हूं। ठीक ये सामने वो, अगर आपको घाटी याद हो तो वो पूरा हिस्सा, वहीं से वो जबरदस्त जलधारा नुकसान पहुंचाते हुए, त्रासदी मचाते हुए, इस मंदिर को नुकसान पहुंचाते हुए आगे की तरफ निकल गई थी। अब उसको आगे से इस तरह का कोई नुकसान मंदिर को ना हो। अगर इस तरह कभी फ्लैश फ्लड आता है, पानी की ऐसी धार पहुंचती है, तो अब कोशिश ये की गई है, ये पूरा कंक्रीट वॉल जो आपको दिख रहा है सामने से, ये फर्स्ट लाइन ऑफ, आप कहें कि सुरक्षा का पहला घेरा तैयार किया। तेरा की त्रासदी में जब वो पानी की धार मंदिर की तरफ बढ़ रही, तो ये भीमशिला ठीक मंदिर के पीछे आके रुका था। ये उस पानी की धार के साथ ही ये शिला यहाँ तक पहुंची थी और उसके बाद बताया जाता है कि मंदिर के ठीक पीछे वाले हिस्से में आके ये पूरा का पूरा विशाल चट्टान, जिसको आप भीमशिला के नाम से जानते हैं, वो आके रुक गई थी। यहाँ पर मौजूद साधु सन्यासी भी बताते हैं कि भीमशिला लोगों के लिए कितनी पूजनीय है। तिपेट-शिला पहले नहीं था, 2013 से पहले। जब 2013 में हमला हुआ तो वो ये ऊपर से शिला घूमता फिरता यहाँ पे पानी आया था। हाँ, जब वो हादसा हुआ तो उस हादसा में आया ये और आके यहाँ पे कुदरती रुक गया। रुकने के बावजूद है ये, इसके ऊपर से पानी गया, चलता रहा कई देर तक, पर भोलेनाथ के दरबार में कुछ नहीं भोलेनाथ की बिगड़ा। उस दिन से इसका नाम रखा गया भीमशिला और तिपेट-शिला। यहाँ पर मौजूद जिन साधु सन्यासियों ने 2013 की तबाही अपनी आंखों से देखी थी, उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दोबारा ये जगह इस तरह आबाद होगी। साधु सन्यासी भी इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की सराहना करते हैं। हम लोग तो पहले पत्थरों में बैठते थे, यहाँ पर इतना पत्थर था कि कोई जवाब नहीं, बड़ा बड़ा पत्थर था कि जवाब नहीं, मशीन ही तोड़ेगी उसको, वो पत्थर थे। तो उन्हीं बीच में हम लोग बैठते थे और कोई ऐसी बात नहीं थी। बाकी अभी तो बहुत अच्छा पत्थर उत्तर का सब काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सुधार भी हो रहा है और यात्री और श्रद्धालु भी लगन से आ रहे हैं। मतलब उनको ये चाहिए कि भाई हम लोगों को आना है और ई पास खत्म करवाना है और हम लोगों को यात्रा बढ़ानी है, क्योंकि बाबा के इतने बड़े भगत हैं कि लोग, आदमी पहाड़ भी जंगल भी चढ़ जाएंगे तो वो पहुंचेंगे। तो ये अभी हाल है कि लोग रातों में भी बेचारे सो रहे हैं, जग रहे हैं और फिर आ रहे हैं और सबकी विनती करके आ रहे हैं। तो ये बाबा है मोक्ष धाम। यहाँ पे जीते जी भी मोक्ष है और बेटा मरने के बाद भी मोक्ष है, क्योंकि इसके 3 द्वार हैं। 3 द्वार, एक द्वार घुसने का है, एक द्वार निकलने का है, एक द्वार भगवान विष्णु का है। जो भगवान विष्णु का द्वार है वो मोक्ष द्वार है, उसमें हम लोग मरने के बाद भी हमारी मोक्ष होगी।
और जीते जी तो हमारी मुखशाही है। यहाँ पे एक पल एक क्षण के भारी है, मतलब एक पल काटा तो करोड़ी जन्म का उसके अंदर फल है, पुनर्जन्म का फल होता है, क्योंकि बाबा का ऐसा धाम है। एक अहम इसमें बात आती है कि आप कहते हैं प्रधानमंत्री यहाँ आते रहते हैं, चीजों को देखते रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे ध्यान गुफाएं भी बनवाई कि लोग वहाँ ध्यान कर सकें। आपको लगता है आस्था और बढ़ी, क्योंकि 2013 में सब कुछ जैसे खत्म हुआ, जिस तरीके से वो विभत्स तस्वीर हमारे सामने थी, और भी ज्यादा आस्था बढ़ी है। और आप प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं? वो बार बार उनका यहाँ, अगर वो उनका 5 या 6 दौरा अब तक यहाँ हो चुका है, उनका ऐसा कोई विचार नहीं है। वो यहाँ पर पहले भक्ति भी कर गए हैं। ये कुबेर गुफा है नीचे बिठाया हुआ गरु चट्टी से ऊपर नीचे की तरफ, तो वहाँ पहले उन लोगों ने भक्ति भी करी है, भजन भी करा है, तो उनकी आस्था है यहाँ पर, भजन है उनका। ये थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री है तो यहाँ पे आने से उनको मना कर दिया जाएगा। वो तो भाई सब, भगवान तो सबके लिए एक है, तो वो अपने अच्छे आत्मा से आते हैं, दर्शन मेला करते हैं, और जो भी कोई कार्य होता है करवाने का या करने का वो देख के भी जाते हैं। 2013 के बाद 2021 में केदारनाथ धाम में कितना बदलाव आ चुका है, इसे समझने के लिए आप 2021 की दिवाली की इन तस्वीरों को देखिए। आज यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा है। लोग बढ़ती सर्दी के बीच भी बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले आज के दिन यहाँ दर्शन की अनुभूति इन भक्तों को भी रोमांचित कर रही है। साफ है, 2013 की त्रासदी को केदारनाथ धाम पीछे छोड़ चुका है। पुनर्निर्माण के बाद केदारनाथ धाम की छटा और अद्भुत हो गई है। प्रधानमंत्री कल कई योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ कुछ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, और ये सभी योजनाएं केदारनाथ धाम को श्रद्धालुओं के लिए और सुगम बनाएंगी। केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग आध्यात्मिक रिश्ता है। राजनीति में आने से पहले केदारनाथ धाम में उन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा है, और लोग ये भी बताते हैं कि उत्तराखंड में इन पर्वत श्रृंखलाओं की अलग अलग गुफाओं में उन्होंने अलग अलग समय पर साधना की है। वो कई महीनों तक उन गुफाओं में रहे हैं और उन्होंने वहां पर साधना की है, वहां पर तप किया है, और इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लगातार केदारनाथ धाम आते रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना के लिए वो यहाँ पहुंचते रहे, और साथ साथ उन्होंने एक अलग तरह का कार्य करवाया। ध्यान गुफाओं का निर्माण कराया गया। इस भव्य केदारनाथ धाम, इस भव्य केदारनाथ मंदिर के आसपास कई सारी ध्यान गुफाएं उन्होंने तैयार करवाई, और 2019 में वो स्वयं यहाँ आए और पूरी रात उन्होंने एक ध्यान गुफा में रहकर ध्यान किया। पूरी रात उस ध्यान गुफा में रहे। इसके बाद अब देश के लोगों का भी इंटरेस्ट, देश के लोगों की रुचि भी उन ध्यान गुफाओं की तरफ बढ़ी। वो उनकी तरफ आकर्षित हुए, और अब लोगों के आकर्षण का केंद्र है, और अब लोग बाकायदा उन ध्यान गुफाओं में पहुंचते हैं ध्यान करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो देश के लोगों के बीच अब उन ध्यान गुफाओं का एक अलग महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीरें सबको याद होंगी। मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पहुंचे थे। केदारनाथ धाम में मौजूद इस गुफा में प्रधानमंत्री ने ध्यान भी लगाया था। ये तस्वीरें सारे देश ने देखी थी, और इस तस्वीर को देखने के बाद सारे देश में केदारनाथ धाम में बनी इन आध्यात्मिक गुफाओं की चर्चा होने लगी, और आज देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और महादेव की आराधना करते हैं। जी न्यूज भी बाबा केदारनाथ के धाम में बनी इन गुफाओं का जायजा लेने के लिए उसी रास्ते से पहुंचा जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गुफा तक गए थे। साल 2019 की एक तस्वीर आपको शायद याद होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए थे। केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने के बाद एक गुफा में उन्होंने समय व्यतीत किया था, ध्यान में रहे थे कई घंटों तक। हम आज पहुंचे हैं उस गुफा तक।
मंदिर की तस्वीर हमने आपको दिखाई और मंदिर से ऊपर की चढ़ाई पे तकरीबन 2 किलोमीटर का ये रास्ता तय करके ऊपर आप गुफा तक आते हैं। शहरों में आजकल मेडिटेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक ध्यान केंद्र कह सकते हैं आप इसको। प्राकृतिक ध्यान की वो जगह है जो नेचर के बीच है और वैसे ही उनको तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे जैसे मैंने आपको बताया, और अब हम यहाँ पहुंचे हैं तो कुछ देर हम भी यहाँ रहेंगे और यहाँ की अनुभूति, यहाँ क्या भाव आता है अंदर ध्यान करने पर, जरा देखते हैं। आइए। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ये गुफाएं तैयार की गई हैं। पहाड़ों पर बनी पत्थर की पुरानी गुफाओं में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ मंदिर से दाईं ओर दुग्ध गंगा से गरुड़ चट्टी तक 3 ध्यान गुफाएं बनाई गई हैं, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। साल 2008 में यहाँ पहली ध्यान गुफा का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब यहाँ कुल 4 ध्यान गुफाएं बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 के अक्टूबर महीने में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास के दौरान ही ध्यान के लिए केदारनाथ की पहाड़ियों पर ध्यान गुफा बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इन गुफाओं का निर्माण किया गया। जिस गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आराधना की, वहां पर जी न्यूज भी पहुंचा। यहां पर एक बोर्ड भी लगा है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री ने यहां पर एकांतवास किया था। अब आप इस गुफा के अंदर बैठकर ध्यान करने की अनुभूति भी समझिए। केदारनाथ मंदिर से आप 2 किलोमीटर ऊपर जब ट्रैक करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये एक ध्यान गुफा है। इस ध्यान गुफा में साल 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और यहाँ वो रहे थे ध्यान में कई घंटों तक, और उसके बाद ये आम जनता के लिए इसको खोला गया। यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ ध्यान कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ, कुछ घंटों से यहाँ पर हूँ, और यहाँ की अनुभूति को शब्दों में बयान करना शायद मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए क्योंकि आप जब लोगों के बीच रहते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, उस वक्त आपको अपने होने का, खुद के होने का, एक खुद को खोजने का, खुद को ढूंढने का एक जो एहसास है, वो उस वक्त आप उसका आभास नहीं करते। लेकिन जब आप ऐसी किसी गुफा में आते हैं, ध्यान में रहते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आप अपने आप को पहचानने के लिए आपने वक्त नहीं दिया, अपने आप को ढूंढने में आपने समय नहीं बिताया, अपने आप को अंदर से आप क्या हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, और ये तमाम सारे सवाल जिसका जवाब आपको यहां मिलता है। अगर वो सवाल आप अपने आप से पूछते हैं तो आप कौन है, आपको ढूंढने के जो तमाम प्रश्न आपके अंदर आते हैं, उसका जवाब आपको यहाँ आके मिलता है, जो मेरी अनुभूति है। इस ध्यान कक्ष में, इस ध्यान गुफा में लोग आते हैं और 2-2 दिन तक रहते हैं। ये पूरी गुफा जिस तरीके से तैयार की गई है, बेसिक एमिनिटीज यहाँ पर हैं आपके लिए, जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं इस गुफा में। छोटी सी गुफा है, पीछे प्रधानमंत्री जब आए थे, कब आए थे, उसके बारे में एक जानकारी भी है, और साथ साथ ये सामने यहाँ व्यवस्थाएं रखी गई हैं, जो मैंने कहा कि बेसिक एमिनिटीज जो हैं ये आपको सामने दिख जाएंगे। अगर आपको पीने के पानी की व्यवस्था चाहिए, आपको कुछ और व्यवस्थाएं चाहिए, अगर आप स्नान करना चाहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिलेंगी। लेकिन मुख्यतः यहाँ लोग ध्यान के लिए आते हैं, ध्यान में रहते हैं, 2-2 दिन तक रहते हैं, 1 दिन रहते हैं, कुछ घंटे भी रहते हैं, और उसके बाद यहाँ ध्यान में रहने के बाद लोग यहाँ से फिर चले जाते हैं। केदारनाथ धाम से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित इन सभी गुफाओं का आसपास ही निर्माण किया गया है। ये गुफाएं पौराणिक कला में तैयार की गई हैं। गुफाओं को सुविधाओं से लैस करते हुए इन्हें आधुनिक बनाया गया है। ये सभी गुफाएं 12,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं। इन गुफाओं की 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई रखी गई है। गुफाओं के निर्माण में 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हर गुफा में एक साधक ध्यान कर सकता है। यहाँ पर शौचालय और गर्म पानी की व्यवस्था भी है। इस गुफा को पानी और बिजली से भी जोड़ा गया है। सबसे खास बात है कि अब यहाँ पर देश के कोने कोने से लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। युवा भी यहाँ पर आते हैं और ध्यान में रम जाते हैं।
शांति की तलाश में केदारनाथ धाम आने वालों के लिए ये गुफा किसी वरदान से कम नहीं। ये गाजियाबाद के रहने वाले ऋषभ है, जिन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस गुफा में ध्यान करते देखा था। शांत और एकांत में ध्यान की तलाश इनको केदारनाथ धाम तक खींच लाई। हम यहाँ आए थे कवर करने, तो हमें ऋषभ भारद्वाज मिले यहाँ पे। 29 साल की उम्र है और 2 दिनों से यही है। हम लोग जब यहाँ कवर करने आए तो अब ये यहाँ से जा रहे थे, तो कौतूहल ये था कि 29 साल की उम्र में ये ध्यान आया कि ध्यान गुफा में जाना चाहिए। और 29 साल की उम्र में तो हम जानते हैं महानगरों में जो युवा हैं वो किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऋषभ को यहाँ क्या कुछ खींच के ले आया? ऋषभ, 2 दिन से आप यहाँ हैं। मेरे मन में ये है, ये 29 साल की उम्र में कैसे आ गया कि आप 2 दिन यहाँ आके बिताएं? एक्चुअली 29 साल की उम्र में तो नहीं, सदगुरु की वीडियो देखी थी मैंने, तो उसके बाद से उन्हीं की ही क्रिया फॉलो कर रहा हूँ। तो एक इच्छा थी एकांत में आके एक्सपीरियंस करके देखूँ कैसा लगता है। 2-3 किलोमीटर तक कोई भी होना और मैं अकेला, तो थोड़ा एक एक्सपीरियंस लेना था लाइफ का। आइसोलेशन का एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है। कितनी देर रहे अंदर? 2 दिन रहा। 48 घंटे। 48 घंटे। क्या भाव रहा, क्या अनुभव किया? बहुत ही अमेजिंग अनुभव रहा। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उस हिसाब से देखा जाए तो। किसी को ध्यान करना हो, मेडिटेशन करना हो, बिकॉज एक शांति है, एक खोज है अपने आप की, मतलब बेसिक फैसिलिटी आपको है, सिक्योरिटी पूरी है, कोई इशू नहीं है। और सबसे अमेजिंग है ये जो जगह है, ये पोर्श, अगर आप यहाँ पे सुबह ध्यान लगाओ और सामने इस पर्वत को देखो, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब वर्ड्स में डिफाइन करना मुश्किल है। एक लिमिटनेस एक्सपीरियंस देता है, कुछ भी लिमिटेड नहीं है लाइफ। आजकल की तेज भागती जिंदगी में ध्यान के महत्व के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी बार बार लोगों को बताते रहते हैं। भी मानते हैं यहाँ पर एक बार आकर लोगों को ध्यान की अनुभूति जरूर करनी चाहिए। क्या भाव लेके जा रहे हैं यहाँ से? जी, भाव तो एक अमेजिंग है। मतलब मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप रहेगी है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। अकेले केदारनाथ आया हूँ मैं गाजियाबाद से, और वर्ड्स में कहना मुश्किल है। एक्सपीरियंस तो, क्योंकि लाइफ अभी और है तो और आएंगे, लेकिन ये सडनली अभी तक तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये ध्यान गुफाएं भी केदारनाथ धाम में आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर ध्यान के बाद अपने अनुभव का जिक्र किया था। इस धरती से हमारा एक विशेष नाता भी रहा है, तो आने का मन कर जाता है। कल से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन यहाँ एक गुफा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसे के बाद मिला, और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। उसमें एक छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी उसको दर्शन करता रहता हूँ। तो एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था, अलिप्त था, यहीं खोया हुआ था। न कोई कम्युनिकेशन रखा था, न कोई अपने आप में था। मेरे बड़े भाई तो वो 2013 की आपदा में चले गए, तो प्रवीण कुमार उनका नाम था, जो आज उनके गौर हैं यहाँ पे, जो पंडित है, मेरे भाई का नाम ही वही था। वो हमारे रूम पे बरोबर आते थे, प्रधानमंत्री जी। जी हाँ, और यहीं रहते थे। यहीं रहते थे 3 साल तक जो है वो हमारे साथ खाते चीते थे। उनको उस चीज का कोई ज्ञान नहीं था उस चीज। लेकिन इस जगह को लेके उनका बड़ा विश्वास रहा है शुरू से। है, इन्होंने यहाँ 3 साल तक तपस्या की है मोदी जी ने, तो भाई उनको ज्ञान तो होगा कि आदि गुरु शंकराचार्य क्या है, उनको इतना ज्ञान है। केदारनाथ धाम जाकर महादेव की भक्ति करने का सपना हर शिव भक्त देखता है, और ऐसे में इस गुफा में जाकर आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करना लोगों के लिए एक अभूतपूर्व अनुभव साबित हो रहा है। तो शिव के इस पवित्र धाम से दीपावली के इस खास और स्पेशल एडिशन में, डीएनए के स्पेशल एडिशन में फिलहाल इतना ही।